السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ٹاپک زیادہ تر جو ہے ہماری جیسی ہی مسلم فیملیز کے لیے ہے، جہاں پر ہم لوگ بڑے ہوئے ایک چیز ہم نے دیکھ لی اپنے گھر میں، اور جو ہے چیزیں جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ نماز ہے، پریکٹس ہی ہے نا وہ اسلام کی، نماز ہے، قرآن ہے، روزے رکھیں، لیکن احساس کے ساتھ نہیں۔ احساس کہاں سے آتا ہے؟ احساس آتا ہے روح سے، الحمدللہ، یعنی کہ جو اسپریچول کیا ہوتا ہے، فیلنگ ہوتی ہے۔ تو وہ اسپریچول احساس جو ہماری ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور نم پڑ چکی ہے، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے ہمیں دوبارہ کیسے اس کو زندہ کر سکتے ہیں، دوبارہ کس طریقے سے ریوائو اس کو ہم کر سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اس احساس کو کتنے تک لے کر جانا ہے، اور کتنے پر آ کر وہ نم ہوتی ہے، اور کتنا ہائی وہ جا سکتی ہے، اور ہائی جانے کی بھی کتنی زیادہ کیا ہے لمٹ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم اور روٹین یہاں پر میں نے ڈالا ہے، تو یہ ایک بال ہے۔ کسی بچے کو اگر آپ ایک بال فرسٹ ٹائم میں دکھائیں گے، تو وہ جو اس کی خوشی ہوتی ہے، وہ جو اس کی لذت ہوتی ہے، وہ جو اس کا کیا ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کی جو فیلنگز کی انٹینسٹی ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہر دن آپ ایک بال لا کر دے دیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کا روٹین بن جاتا ہے۔ روٹین جب بنتی ہے کوئی چیز، تو وہ ہمیں کیا لگتی ہے، وہ ہمیں بور لگنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی اگر پریکٹسنگ کو دیکھیں گے، تو بہت ساری مطلب ہم لوگ کے ساتھ کبھی کافی بار ہوتا ہے ایسے، کبھی کبھی ہم لوگ نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، کبھی کبھی ہم زبردستی پڑھتے ہیں، لیکن لذت جو ہے ہمیں وہ ڈالنی ہے۔ تو وہ لذت کیسے آئے گی؟ جب ہماری روح اس لذت کا احساس کر لے گی کہ اس کے اندر جو ہے کیا ہے، یہ لذت ہے۔ اور جب وہ لذت لگے گی روح کو، اس کی زبان کو لگے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہے ہم الحمدللہ ہماری جو فیلنگ ہوگی وہ ہمیشہ جو ہے انٹینس ہی رہے گی۔ ہمارا جو محسوس کرنے کا طریقہ ہوگا عبادتوں کو، کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا۔ تو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ فار ایگزامپل، جو انسان پہلی بار کعبہ دیکھ رہا ہو، کعبہ کا تو یہ ہے کہ جتنی بار بھی جو انسان دیکھتا ہے اسی کی طریقے سے دیکھتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار ہی کسی نے دیکھا ہے۔ تو وہ جو فیلنگ ہے، اور لیکن اب اسی طریقے سے نمازوں کا دیکھ لیں۔ نماز جب اسٹارٹنگ میں بچہ پڑھتا ہے، تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ نماز تھوڑی دیر سے پڑھی جاتی ہے، پھر اتنا زیادہ ہم لوگوں نے آج کل شروع کر دیا ہے کہ 10 منٹ میں، 8 منٹ میں، اس طریقے سے جو ہے ہم جلدی جلدی نمازیں وہ کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو فریش کیسے بنائیں؟ کسی بھی چیز کی جو انٹینسٹی ہے اتنی ہی ایموشنل ہو جیسے کہ پہلے تھی، ٹھیک ہے؟ اب پہلے کب تھی؟ ایگزامپل لیتے ہیں اس چیز کا۔ مان لیجئے ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جو ہے ریورٹ پوائنٹ ضرور آتا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلے ہم صرف نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ بچپن سے اب تک صرف اور صرف ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جتنی میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ان سب کی زندگی میں ایک نہ ایک پوائنٹ ایسا ضرور آیا ہوگا جہاں انہوں نے کیا کیا؟ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ اور اس طریقے سے جوڑا کہ کیا ہوا کہ اب وہ واپس اس جگہ سے مڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو اس چیز کی لذت پتہ چل گئی، انہیں کیا پتہ چل گیا؟ وہ جو فیلنگ تھی وہ ان کی اب انٹینس ہی رہے گی۔ تو وہ کیا ہوا؟ ان کی روح نے ان کو احساس کرایا اس لذت کا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیشن شپ۔ تو اب جو ہم ایک چیز پہلی بار کر رہے ہیں اس کی لذت الگ ہے، اور روٹین والے کی لذت الگ ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بنا لیا ہے کس چیز کو، جب ہم کسی چیز کو نارمل کرتے رہتے ہیں تو ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ اسلام میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یعنی کہ دیز آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف اسلام۔
یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے بہنوں، ہم نے رولس کی طرح اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے لذت پانے کے لیے وہ چیز نہیں کی، اور لذت صرف وہی بہنیں سمجھیں گی یا وہی لوگ سمجھیں گے جن کی لائف میں ایک ایسا پوائنٹ آیا ہے، جنہوں نے ان کو کیا کیا، ایسی چیزیں ایسا کیا کہ وہ جو ہے اتنے کس کے انہوں نے رسی پکڑ لی ہے کہ اب وہ زندگی میں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان سے کہو پوری دنیا یا یہ، وہ کہیں گے کہ نہیں دین۔ ان سے کہو کہ کچھ اور یا یہ، جس چیز کی چاہت بھی ہو وہ چیز سامنے بھی رکھ دو تو کیا کہیں گے کہ نہیں، مجھے کیا چاہیے، مجھے صرف اور صرف اسلام، صرف اور صرف میرا دین ہی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اس میں کیا لذت ہے، ان کے دین میں کیا لذت ہے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو مطلب بولتے ہیں کہ جب ہمارا جو ہے اچھے اچھے ریسورسز ہوں گے ہمارے پاس تو ہم بدلیں گے۔ ہم کرتے تو ہیں ساری چیزیں لیکن احساس نہیں ہے۔ میں نمازیں تو پڑھ رہی ہوں لیکن وہ کنیکشن فیل نہیں ہوتا۔ میں قرآن پڑھتی تو ہوں لیکن پہلے جو وہ ہوتا تھا نا ایک اندر سے اچھی فیل ہوتی تھی، وہ نہیں ہے آج۔ تو ایسا ہوتا ہے نا، ہم کئی بار بولتے ہیں یہ سب چیزیں کہ پہلے جو میں کرتی تھی اب اس طریقے سے نہیں ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں اسپرچل نمنس۔ نمنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے نا ہاں، جس طریقے سے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے جو کہ بالکل سے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور سننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک فریش سٹارٹ چاہیے، ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جو کہ جو ہے کیا کرے، ہم کو وہ کرا سکے، کوئی کچھ ریسورس ہو، کچھ ایسی چیز مل جائے ہم کو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے رسی کو جو اچھے سے تھام لیں۔ تو اس کا اگزامپل ایسے لیجئے کہ کوئی اگر انسان ہے جو کہ بہت زیادہ سکسیسفل ہو چکا ہے، اور سکسیسفل ہونے کے بعد کیا کوئی سکسیسفل انسان بچپن میں مان لیجئے کوئی جھاڑو لگانے والا رہا، تو کیا اس جھاڑو لگانے والے کو باقی ریسورسز ملے تھے؟ کیا اس جھاڑو لگانے والے کو باقی چیزیں ملی تھی؟ نہیں، اس نے خود کیا۔ اس نے کیا کیا؟ خود کی ساری چیزیں۔ یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ جو چیز میں پانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے روز مشقت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ اسے یہ ریئلائزیشن تھا، اسے اس چیز کا احساس تھا کہ میں آج جھاڑو لگا رہا ہوں، کل کو جو ہے مجھے ایک بڑے مقام پر پہنچنا ہے، تو اس بڑے مقام کو پانے کے لیے وہ روز کیا کرتا رہا؟ وہ کوشش کرتا رہا بہنوں۔ اسے اس چیز کا احساس تھا کہ مجھے ایک جگہ پر جانا ہے۔ تو جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں لیکن من نہیں لگتا، کرنا ہے پر پورے دل کے ساتھ کرنا ہے، آدھے من سے کریں گے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک، اب آدھے من کو یہاں پر لے لو کہ وہ جھاڑو لگانے والا ہے اور اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے بہنوں۔ تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں پڑھوں گا یا پھر جو ہے میں بہت بڑا چیمپئن بنوں گا، لیکن تب بنوں گا جب میرے پاس جو ہے اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، کالج میں جانے کا ریسورسز ہو، اور کیا ہو کہ جب کوئی مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا دے، تو کیا وہ کبھی سکسیسفل بن پائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میں کس چیز سے وہ بنا؟ خود کو یہ احساس دلا کر کہ میری ابھی حالت کیا ہے، مجھے کہیں اور پہنچنا ہے۔ کس چیز سے وہ بنا؟ خود کو ریئلائز کرا کر کہ میں کس جگہ پر ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ یعنی کہ جو یہ میری حالت ہے، جس حالاتوں میں ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ اور اس نے اس چیز کو اپنا روٹین بنایا، نہ کہ اس چیز کو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اس چیز کو جب آپ روٹین بنائیں گے اور اگلے دن اور بہتر ہوگا اور بہتر ہوگا اور بہتر ہوگا، تب جا کر کیا ہوگا؟ تب جا کر ہم کیا پاتے ہیں؟ تب جا کر ہم جو ہے سکسیسفل ہوتے ہیں۔ الحمد للہ۔ اب اسپرچل ہائی کی بات کرتے ہیں۔ اسپرچل ہائی کیا ہوتی ہے؟ مطلب جو آج کا ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ کہ ہمیں ڈفرینٹ فریشنس چاہیے، ایمان میں ہمارے ڈفرینٹ سویٹنس چاہیے۔ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ لیکن روحانی بلندی کی بات کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کو جو ہے نیا فریش دینے کے لیے اس کو ایک لیول اپ کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اگر دنیاوی چیزوں سے دیکھیں گے کہ آپ صرف ایک کمرے کے گھر میں رہ رہے تھے، وہیں آپ کو اگر 4 کمروں کا گھر دے دیا جاتا ہے تو وہ ایک لیول اپ ہوتا ہے، اور آپ جو ہے خوش، اور آپ لیول اپ، اور آپ جو ہے بلند فیل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روح کا بھی کیا ہے بہنوں؟ روح بھی بلند فیل کرنا چاہتی ہے، اور روح کی بلندی جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملواتی ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن یہاں کی جو بلندی
होती है दुनिया की, वो किससे मिलवाती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के स्टैंडर्ड से मिलवाती है कि चलो अभी हम अच्छे लोगों में उठेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे और ये सब कुछ करेंगे। तो रूहानी बुलंदी होती क्या है? तकवा इख्तियार करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन होना। ihsan का मतलब होता है परफेक्शन, ठीक? परफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप ट्राई करो परफेक्ट बनने का। इसमें बिल्कुल से ये नहीं है कि परफेक्शन जो है आपको परफेक्ट होना है। ihsan का मतलब ट्राई टू बिकम परफेक्ट। और हाई ईमान, रूहानी बुलंदी सिर्फ ये नहीं होती है। अगर हम कहें कि तकवा इख्तियार कर लेने से, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर रखने से, ठीक है? ईमान का जो है बड़ा होने से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन होने से, परफेक्ट होने से, ठीक है? और जो है क्या होने से, सिर्फ हाई ईमान आने से। अगर इस तरीके से हम देखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बाईपास करना हो गया बहनों ये। देखिए तकवा, खुदा का डर है तो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, हम पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो है एहसान, यानी कि हम परफेक्ट करते जा रहे हैं चीज़ों को। परफेक्शन का मतलब कैसे हो गया, हाँ, ये चीज़ है लेकिन इसके अलावा सुन्नतें भी हैं, हाई ईमान। सिर्फ ये कहें कि स्पिरिचुअल हाई, रूहानी बुलंदी इस तरीके से आएगी, लेकिन दुनिया में भी तो है। तो दुनिया में जो है क्या कर, टेम्परेरीली स्पिरिचुअल हाई होगा ये। टेम्परेरीली स्पिरिचुअल हाई कैसा होगा कि पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और फिर क्या होगा, बोर हो जाता है एक दिन इंसान, लगता है कि नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है कि आप जो है, जिस चीज़ की लज़्ज़त बढ़नी चाहिए, उस चीज़ से आप बोर हो गए। क्योंकि इस्लाम में रूहानी बुलंदी का मतलब क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना, ठीक है? वो है उसके अलावा, है ना? और रूहानी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना, सहाबा के लेवल तक पहुंचना, जो सहाबा थे जो वो करते थे उनके मकाम तक खुद को पहुंचाना, तज़किया ए नफ्स, खुद को प्योरीफाई करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरे वाले पर ही जो है आज का पूरा बयान है, तज़किया ए नफ्स, प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, खुद को प्योरीफाई करना, खुद की रूह को जो है क्या करना, पाक करना। और वो कैसे होगा, जब रूह खुद को एहसास दिलाएगी कि मैं गंदी हो चुकी हूँ, है ना? तभी तो होगा ये, वरना कैसे होगा? आप कोशिश करें कि सहाबा क्या करते हैं, उनके मकाम तक पहुँचने की। आप सुन्नतों पर चलें, सुन्नतों को भी फ़ॉलो करें। जो तज़किया, तज़किया का मतलब क्या हुआ? तज़किया का गोल आपने बनाया, कितना रियलाइज़ेशन है उसका, यानी कि कितना मैंने खुद को प्योर किया है, ये एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि स्पिरिचुअल आउट ऑफ शेप क्या होता है? स्पिरिचुअल आउट ऑफ शेप यानी कि कोई भी इंसान है, वो आपका आउट ऑफ शेप किसको बोलते हैं? या तो कोई मोटा होता है, हाँ, रूह को ग़िज़ा देना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है, आउट ऑफ शेप किस इंसान को बोलेंगे? या तो जो मोटा होगा, या जो बहुत ज़्यादा पतला होगा, या कोई ऊपर से पतले होते हैं, कोई-कोई नीचे से मोटे होते हैं। फिज़िकली आउट ऑफ शेप जो है, आपको दुनिया बता सकती है कि आप क्या हैं, आप आउट ऑफ शेप हैं बहनों। लेकिन स्पिरिचुअली जो है, सिर्फ आप खुद ही जान सकते हैं। यानी कि आपकी रूह आपको खुद ही इंडिकेट करेगी कि आप क्या हैं, आप गलत हैं, आप सही जा रहे हैं, आप कुछ फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दीन के मामले में। होता है ना, कुछ लोग कुछ फील नहीं करते, उनको कितना बोलते रहो, बिल्कुल से क्या होते हैं, वो नम होते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। वो कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं ये करूँगा। करूँगा तो मैं पूरी तरीके से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। फिर उसका एग्ज़ाम्पल कैसा लिया गया कि वो जो झाड़ू लगाने वाला जो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, तो अगर वो यही कहता कि मेरे पास अगर मेरे अब्बा मुझको बहुत अच्छे से पढ़ाते तो मैं चैंपियन बनता, वरना मैं नहीं बनूँगा, ये वो वाली चीज़ हो गई। यानी कि क्या हुआ कि उनकी रूह को ये एहसास ही नहीं है कि वो किस हालातों में पड़े हैं, उनको अपने हालातों का रियलाइज़ेशन नहीं है, उनको किस चीज़ का एहसास नहीं है बहनों, कि उनको कहाँ पहुँचना है, उनको लज़्ज़त भी नहीं है बेसिकली किसी चीज़ की। तो स्पिरिचुअली जो है, फिज़िकली सब बता सकते हैं कि मतलब आप जो है यहाँ से आउट ऑफ शेप हैं, आप इस तरह से हैं, ठीक है? और क्या हो रहा है कि आपकी जो है, मतलब बोलते हैं ना लोग कि अरे थोड़ा वज़न बढ़ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है ना? ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन स्पिरिचुअली मैंने किसी को गलत तरीके से ट्रीट किया, मैंने किसी के ऊपर चिल्लाया, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे बुरा फ़ील हुआ।
मुझे बुरा फ़ील हुआ बहनों, और फिर उस चीज़ को मैंने पूरे दिन सोचा। ये कौन बताएगा? यानी कि मेरी रूह बता रही है कि अदीबा आप आउट ऑफ शेप हैं। यानी कि क्या है, आप आउट ऑफ शेप हैं और जो है कुछ इसके अंदर गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, एहसान नहीं है। एहसान का मतलब क्या था यहाँ पर? प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, है ना? प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, और दूसरी चीज क्या थी? परफेक्शन। तज़किया नहीं है, एहसान नहीं है, यानी कि परफेक्शन है ही नहीं। रूह इस तरीके से होनी चाहिए थी, ये नहीं है। लेकिन हम लोग किस चक्कर में पड़े? हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के डूज और डोंट्स में पड़े हैं बहनों। मुसलमान बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पहले आप अच्छे इंसान बनेंगे, तब आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। तो क्या है, जब किसी पर चिल्लाया या किसी से जो है बदतमीजी से बात की, तो पूरे दिन जो है क्या हुआ? तज़कियाए नफ्स हुआ। और क्या पता चला, जो नफ्स थी, जो रूह थी, वो एहसास दिला रही थी कि जो किया वो गलत है। और फिर खुद को प्योरीफाई किया। किस तरीके से प्योरीफाई किया? सेल्फ रियलाइजेशन से, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से। है ना? खुद को कैसे आईने में देखकर, खुद को आईने में देखना मतलब ये नहीं कि शीशे के सामने में खड़ा हो जाना। क्या खुद को आईने में देखना, कि अपने अंदर झांकना कि आज जो किया वो आउट ऑफ शेप था, वो शेप के बाहर था। ये इंसान खुद ही कर सकता है। ये उसकी रूह ही उसको इंडिकेट कर सकती है। अब जिस इंसान की जो है रूह जो है बिल्कुल मर चुकी, या जिस इंसान की जो स्पिरिचुअल नमनेस जिसके अंदर आ चुकी है, जिनको कितना भी कुछ बोलो वो नहीं करेंगे, उनके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहली बात तो क्या थी, कि आउट ऑफ शेप है या नहीं, ये सिर्फ मेरी रूह मुझको खुद बताएगी। यानी कि ये मेरे अंदर ये एहसास होना जरूरी है। जिनमें एहसास नहीं है, वो किस तरीके से खुद को ठीक करेंगे, इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर कुछ भी गलत किया, तो स्पिरिचुअली मैंने क्या किया? खुद को देखा, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज इंसान खुद ही को बताता है कि मैंने ये चीज गलत की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा जो है पढ़ने लग जाऊं, है ना? कि अगर मैंने कोई चीज जो है गलत कर दी है, तो मैं क्या करूं? यहाँ पर बेसिकली किस चीज की बात हो रही है, कि जो लोग वो करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और ये सब कुछ करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। एक बार क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास के जो है आए, और उन्होंने पूछा, ओ अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मैंने तुमको बेसिकली क्या था, कि ये जो थे बहुत ज्यादा क्या करते थे? इबादत करते थे। और इतना इबादत करते थे बहनों, कि पूरी पूरी रात इबादत करते थे, सोते नहीं थे, और हर दिन जो है फास्ट रखते थे। क्या करते थे? हर दिन फास्ट रखते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा कि क्या तुम हर दिन फास्ट रखते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। फास्ट फॉर फ्यू डेज एंड देन गिव इट अप फॉर फ्यू डेज। क्या कहा? कि कुछ दिन रखो और कुछ दिन छोड़ दो। ठीक, फिर उसके बाद बोला कि क्या तुम पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते हो? मतलब इनका ये हालत थी, कि जब इनकी शादी हुई, तो जो सुन्नत है, शादी के बाद जो जोड़ा जो है वो 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ता है, जो सुन्नत होती है वो पढ़ता है। तो जब उन्होंने शादी की रात वो नमाज पढ़ी, तो उनको सुबह हो गई। इतना ज्यादा ये इबादत करते थे। तो क्या हुआ, जो इनकी जो है क्या की गई, शिकायत की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किन किन की? बीवी की तरफ से बोला गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला? हाँ, उनको बुलाया, उनकी वाइफ को, और पूछा कि वो कैसा शौहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? पूछा कि वो कैसा शौहर है, तो जवाब दिया कि वो बहुत अच्छा इबादतगार है। ये नहीं बोला कि अच्छे शौहर हैं या बुरे शौहर हैं या कैसे हैं, बोला कि वो बहुत अच्छा इबादतगार है। यानी कि आप सोचिए कि निकाह की रात जो 2 रकात सुन्नत पढ़ना होता है, वो फज्र तक चली गई उनकी। क्या होता था? कि सिर्फ और सिर्फ इबादतों में ही लगे वो रहते थे, इबादतों में ही लगे रहते थे, है ना? अब एक चीज जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि रूहानी एहसास, तो इस जो है इस हदीस का इससे क्या मतलब है, कि इतनी ज्यादा इबादत, है ना? रूटीन की बात हुई थी ना, कि हम किसी चीज को रूटीन में लेकर आ रहे हैं,
اور پھر کیا کہا گیا کہ خود کو پش کرنے کے لیے بولا گیا، کیا کرنے کے لیے بولا گیا کہ ہمیں لذت کب ملے گی جب ہم کوئی نئی چیز کریں گے بہنوں۔ یعنی کہ میں فرض پڑھتی ہوں، میں نے کیا کیا، نفل پڑھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو میری لذت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ لیکن اس چیز کو کرتے 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 اتنا زیادہ جو ہے ایگزیجریٹ نہ کر دیں۔ یہ بیسیکلی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، جو دوسری سلائیڈ میں نے دکھائی تھی، کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو کیا ہوتا ہے اسپرچل ہائی کا مطلب صرف تقوی اختیار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانا، احسان یعنی کہ پرفیکشن میں ہونا، اور صرف ہائی ایمان ہونا۔ تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو عبداللہ ابن عامر جو تھے، عبداللہ ابن عمر بن عاص جو تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ پہلی والی سلائیڈ کی طرف پوری طریقے سے تھے۔ یعنی کہ وہ اتنا زیادہ فاسٹ کرتے تھے، اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اتنی زیادہ نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادت میں وہ اوور کر دیتے تھے، یعنی کہ اوور ہو جاتا تھا بہنوں ان کا۔ ٹھیک، اسپرچل ہائی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ روحانی بلندی کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا صرف یہی روحانی بلندی ہے؟ نہیں، روحانی بلندی کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاؤس ہولڈ میں نیگلیکٹ فل ہو گئے یہ، یعنی کہ اپنے گھر کے اس سے کیا ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دی چیزوں کو، کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا چیزوں کو۔ تو پھر ان کی بیوی کی طرف سے جو ہے شکایت کی گئی کہ اس طرح، تو ان سے پوچھا بھی کہ وہ کیسے شوہر ہیں، تو کیا کہا، بہت اچھے عبادت گار ہیں، یہ نہیں کہا کہ برے ہیں، کیونکہ وہ نیک بندی تھی، وہ جانتی تھی کہ کیا بولتے ہیں کہ وہ اچھا ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ پوری رات پڑھتے ہیں نماز تو ایسا نہ کریں، سوئے بھی۔ اور پھر کہا کہ صرف اور صرف مہینے کے 3 روزے رکھ لیں، اور پھر وہ کس سے 10 گنا جو ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بولا، اور جو ہے کیا کیا، فاسٹنگ کے لیے انسٹرکشنز دیے کہ آپ مہینے میں صرف اور صرف 3 روزے رکھا کریں، ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر جو ہے کیپیبلٹی ہے اور میرے اندر طاقت ہے، میں جو ہے کر سکتا ہوں۔ انہوں نے I insisted on fasting so I was given a hard instruction، ٹھیک، I have power، انہوں نے بولا کہ میرے اندر طاقت ہے تو میں رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے داؤد علیہ السلام کی طرح وہ رکھیں، روزے رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کس طرح سے روزے رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاف آف دا ایئر، ہاف آف دا ایئر کا مطلب کیا ہوا، آدھے سال وہ روزے رکھتے تھے، یعنی کہ ایک دن جو ہے فاسٹ کرتے تھے، اگلے دن چھوڑ دیتے تھے، پھر ایک دن فاسٹ کرتے تھے، پھر اگلے دن چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے 365 دن میں سے جو ہے صرف اور صرف، یعنی کہ 12 مہینے میں سے صرف 6 مہینے جو تھے وہ فاسٹ رکھتے تھے۔ تو یہ کہا، اور پھر جو ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے، اب جب عبداللہ جو ہے بوڑھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہتر ہوتا اگر جو میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن مانگ لیتا صرف اور صرف 3 مہینے میں 3 دن رکھنے کی، یعنی کہ آپ کو اوور ایگزیجریٹ بھی نہیں کرنا ہے خود کو۔ یعنی کہ آپ جب اسپرچل بلندی کی بات کر رہے ہیں، جب روحانی بلندی کی بات کریں، تو اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں بہنوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایک طریقے سے پہنچ جائیں گے تو آپ دوسری چیزوں کی لذت ختم کر دیں گے۔ ہر چیز کا بیلنس، حالانکہ وہ اپنی عبادتوں میں بہت زیادہ تھے، لیکن وہ کیا نیگلیکٹ کر رہے تھے، اپنا ہاؤس ہولڈ جو تھے وہ نیگلیکٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر کیا تھا بہنوں، یہاں پر امبیلنس تھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں فالو ہو رہی تھی، یہاں پر جو ہے صحابہ کرام نے جتنی چیزیں کی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اور تیسری چیز کیا تھی کہ یہاں پر جو تھا سیلف ریفلیکشن نہیں تھا، پیوریفیکیشن آف سیلف نہیں تھا۔ تھا ایک طریقے سے، اگر اس سلائیڈ کو دیکھا جائے تو یہاں پر ساری چیزیں تھی، تقوی بھی تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی تھا، پرفیکشن ہونے کی بھی کوشش تھی، اور ایمان بھی جو تھا اس انسان کا ہائی تھا۔ لیکن اگر دوسری سلائیڈ کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف مہینے کے 3 دن روزے رکھو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے اندر پاور ہے، میں رکھ سکتا ہوں۔ پھر کہا، پھر صحابہ کی طرح بننا، صحابہ کی طرح بھی بننے کی کوشش نہیں، بہتر بننے کی کوشش تھی، الحمدللہ۔ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف دا سیلف بھی تھا، لیکن جو ہے کیا تھا، کہیں نہ کہیں جو تھا کیا تھا، انکار تھا، کس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو کیا تھا کہ ان کی عبادت نے ان کو نیگلیکٹ فل کر دیا اپنی زندگی کے ادر ایریاز میں۔ تو
दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? ये नहीं हम किसी को बोल सकते कि नहीं आपकी रूह में एहसास नहीं है तो मतलब दीन की चीज़ों में ही ज़रूरी नहीं है रूह का एहसास, दुनियावी चीज़ों में भी ज़रूरी है। बेसिकली इस पूरी हदीस का जो मीनिंग था, वो ये था कि आप दीन की तरफ बुलाएँ लोगों को, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको ये ना कहें कि सिर्फ़ आपके अंदर तो एहसास ही नहीं है। हम टॉन्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ये नहीं बोले कि हम आपके अंदर एहसास नहीं है, आप कुछ नहीं समझते क्योंकि आप दिन नहीं, दुनियावी चीज़ों के लिए भी रूह का एहसास होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं या किसी के जो है साथ हम अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? दुनिया में ही तो करते हैं ना। किसी को अच्छा फ़ील कराते हैं तो उसे कुछ तोहफ़ा देकर फ़ील कराते हैं, आखिरत तो बाद में है। दुनिया की चीज़ों से ही तो कर रहे हैं। तो क्या है, फंक्शनिंग तो थी उनकी लेकिन फ़ॉल्टी थी, है ना? क्या थी उनकी फंक्शनिंग? फ़ॉल्टी थी। थोड़ा-सा उनकी फंक्शनिंग में क्या था, फ़ॉल्ट था। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या थी, निजात तो चाहिए थी, सैल्वेशन जिसको बोलते हैं ना, यानी कि उन्हें जहन्नुम से निजात तो चाहिए थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो हमें कहा उससे भी वो क्या कर रहे थे, तो क्या हो गया, ये इम्बैलेंस हो गया। और इस इम्बैलेंस का भी एहसास जो है वो रूह ही कराती है बहनों, ठीक है? अब ये ना हो कि मतलब ये पूरी चीज़ इसलिए थी कि इस इम्बैलेंस को भी समझना रूह के एहसास के अंदर आता है। कि हम क्या चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या चीज़ कम कर रहे हैं। तो गोल क्या होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जो है बैलेंस करके चलना। हमारा जो है क्या होना चाहिए, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें निजात तो पानी है, किससे? दुनिया की चीज़ों से या जन्नत से बोल दीजिए, है ना? हमें क्या करना है, हमें निजात पानी है, ठीक? उनका क्या था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं फॉलो कर रहे थे। लेकिन हमारे एक्शन जो होने चाहिए वो किस तरीके से होने चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को पालें। एक्शन हमारे क्या होने चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को पालें। तो इसीलिए जो है वो हदीस आई, इसी कॉन्टेक्स्ट में आई कि कोई भी जो है अपने अमालों की वजह से जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में आई थी बेसिकली, वो कहाँ नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की वजह से जाएगा। ताकि लोगों को ये ना हो जाए कि वो अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन पार्ट यानी कि शरीके हयात, बच्चे और ये सब छोड़ दें। ये सारे अखलाक छोड़कर क्या करें, रात भर नमाज पढ़ें, पूरे साल के 365 दिन रोज़ा रखते रहें। इसलिए वो हदीस आई थी कि हमारे एक्शंस हाँ, बेहतर होने चाहिए बनने के, लेकिन ऐसे हों हमारे अमाल कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को पा सकें, ताकि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमत से जो है जन्नत में डाल दें। किस तरीके से फिर इस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करें ना, कि मतलब अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो भी परेशानी है, कम कर रहे हैं तो भी परेशानी है और कुछ फ़ील ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो रूह के अंदर एहसास ही नहीं है, रूह मर गई है। तो इस चीज़ को मेंटेन कैसे किया जाए? बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, और कम नहीं करना है तो ये भी कहा जाता है कि आप बेहतर बनिए, है ना? बेहतर का मीनिंग क्या होता है? बेहतर का मीनिंग क्या होता है? बताया, यानी कि किस चीज़ की तरफ जाने की? किसकी? एहसान की तरफ जाने के। एहसान का मतलब क्या हुआ? परफेक्शन की तरफ जाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब जाने की कोशिश करनी है और खुद को पुश करना है, खुद को अपने पोटेंशियल के हिसाब से पुश करना है। ये नहीं कि अब जितना मेरा पोटेंशियल है उसके हिसाब से पुश करना है। ये नहीं कि मैं पूरी रात जाग रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, और कौन-सा फिर दुनिया की जो मेरी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जो मेरी बीवी है या जो मेरे शौहर हैं, वो वाला एहसास खो गया बहनों। फिर वो रूहानी एहसास भी नहीं बचा। रीज़नेबल होना चाहिए जो भी चीज़ हो, और तभी जो है ईमान की लज़्ज़त आएगी, वरना नहीं आएगी। आधा दीन कहा गया ना, निकाह के बाद जो होता है तभी आपको ईमान की लज़्ज़त आएगी, वरना वो रूटीन बनता जाएगा और क्या होता जाएगा, डू ये नहीं करना, ये करना है, हलाल है और हराम है, इस तरीके से। अब एहसान के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एहसान करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट कैसा? यानी कि एक एक एनवायरनमेंट, एक माहौल तो ऐसा होता है कि जिसके अंदर लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और एक ये है कि जिसके अंदर लोग पुश कर रहे हैं, यानी कि खुद को क्या कर रहे हैं, एक ऐसे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वो आया ना स्पिरिचुअल हाई, रूहानी बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं कि
अगर दुनिया में अगर बात करें जिस किसकी अगर कोई चीज नहीं होगी, मतलब उसकी तादाद में, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई चीज है आपके पास, दुनियावी उससे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी तादाद में किसी के पास क्या है, वो चीज है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है इंसान को, है ना? वो क्या लगता है, वो रूटीन, वो प्रैक्टिस लगता है। उसका एप्रिसिएशन जो है हम नहीं कर पाते हैं, है ना? किसी के लिए इजीली अवेलेबल या फिर फैसिलिटेटेड कोई भी चीज होगी, तो उसको नहीं पता होगा कि वो प्रीशियस कितनी है। यानी कि लज्जत की बात हो रही है यहाँ पर, ईमान की लज्जत की बात हो रही है, ठीक? उसको उसका एग्जाम्पल कैसे दिया जा रहा है, दुनिया के उससे, जैसे कि मान लीजिए बच्चा है, पैसा मांगता है बचपन में और खर्च करता है, उसको ये एहसास ही नहीं है कि किसी का इसके अंदर पसीना लगा है, कोई इस पैसे के लिए कितना ज्यादा परेशान हुआ है, कोई इस पैसे के लिए जो है कितना ज्यादा जो है उसने पसीना बहाया है। ठीक है, अब उसी तरीके से ले लीजिए, जिस इंसान ने कमाया है वो खर्च करता है, तो एवरी पेनी, एक एक पाई, ठीक है, और वो खर्च करने का एहसास, और वो दिमाग में रखना, माइंडफुलनेस रखना उस चीज की, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जो है मैटर करता है। क्या करना है, खुद को पुश, अब ये प्रैक्टिस वाली चीज हो रही है कि एक इंसान की प्रैक्टिस ये है कि वो सिर्फ खर्च किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है, उसको नहीं पता। तो क्या है, जब तक जो है आपको एहसास नहीं होता कि ये कितना स्पेशल क्यों है, आप जो है नहीं, कोई चीज आपकी स्पिरिचुअल की बुलंदी नहीं आ सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, किस तरीके से जो है रिकॉग्नाइज करें, किस तरीके से जो है एहसान तक पहुंचे या परफेक्शन की तरफ पहुंचे, खुद को हम पुश करें। और किस तरीके से पुश करें, और अब देखिए एग्जांपल लीजिए, यहाँ जो अब सेकंड वाले की बात हो रही है, पहला ये है कि आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो चीज आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में है, उस चीज को जो है क्या कर, जैसे कि फास्टिंग, हम लोग क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। रोजा जब हम रखते हैं और खाना नहीं खाते हैं और पीते नहीं है, तो वो जो पहला निवाला जाता है बहनों, तो उसका जो एहसास होता है, तो क्या जो आप रोज 3 दिन खान 3 टाइम खाना खाते हैं, उसके एहसास से बेहतर नहीं होता? वो ऐसा लगता है ना कि रूह में उतर रही हैं चीजें। ऐसा लगता है कि जब पानी जो है ठंडा ठंडा किस में जा रहा होता है, पेट के अंदर जा रहा होता है और गले के अंदर से जा रहा होता है, तो क्या लगता है कि सुभान अल्लाह मुंह से निकलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो शुक्रगुजारी आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या होता है, शुक्रगुजारी के साथ-साथ क्या आता है, हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है, यानी कि कदर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अहमियत हो जाती है उस चीज़ की। तो यहाँ रूह की क्या बात हो रही है कि मेरी रूह एक चीज़ की आदी हो गई थी, जिसे उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने क्या किया, खुद को ऐसी सिचुएशन में पुश किया ताकि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत का जो है शुक्र अदा कर सकूँ। उसको एहसास किस तरीके से दिलाया मैंने, किस तरीके से दिलाया, फास्टिंग रख के, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो मैं हूँ, मैं सोने की आदी हो गई हूँ रात को, ठीक है? तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं नींद जो है क्या चीज़ है। तो मैं क्या किया, मैंने तहज्जुद पढ़ी, आधे घंटे जो है मैं तहज्जुद पढ़ी। मैंने क्या किया, तहज्जुद में उठ के जो है फज्र तक रही। तो अगले दिन अगर जो है सर अगर मेरा चकराएगा, तो मुझे नींद की अहमियत पता चलेगी बहनों। तो ये होता है खुद को पुश करना। तो इसमें क्या है कि मेरी रूह जितनी भी नेमतें हैं, बोर हो गया था ना सब कुछ, रूटीन में आ गया था ना, और जो रूहानी एहसास था वो कम होते रहता है कि अब 5 टाइम की नमाज़ हो रही है, तो यहाँ पर खुद को पुश करना है। उससे क्या होगा कि खुद के लिए क्या होगा, रूह का एहसास बढ़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी नेमतें दी हैं उसके लिए शुक्रगुज़ारी आएगी। दूसरी चीज़ जो है, आप जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो है इस नरेशन की जो है हम बात करते हैं, जो कि आजकल का मुआशरा है, उसकी ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1710 है। मुझसे याह्या ने मालिक से याह्या बिन सईद ने रिवायत की कि ए उम्र बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि गोश्त से बचो, उसमें शराब की नशा की तरह नशा है, शराब के नशे की तरह नशा है। मुझसे याह्या
ने मालिक से याह्या ने बिन सैद से रिवायत की कि उमर बिन खत्ताब ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कुछ गोश्त उठाए हुए देखा। जो उमर बिन खत्ताब थे उन्होंने याह्या बिन को क्या देखा, कुछ गोश्त के पैकेट्स लेकर जा रहे थे। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हमने गोश्त की ख्वाहिश की और मैंने 1 दिरहम का गोश्त खरीद लिया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या तुम में से कोई अपने पड़ोसी या भतीजे के अलावा वो अपना पेट भरना चाहते हैं? ठीक, या तो अपने पड़ोसी को दे, अपने भतीजे, उसके अलावा जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही पेट भरना है। और फिर कहा तुम उस आयत को कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तुमने दुनिया की ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ज़ाया की और उनमें आराम तलब किया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर ये जो है ये चीज़ का डालने का मतलब क्या था? इस हदीस से हमें क्या लेना है बेसिकली? एनवायरनमेंट की बात हो रही थी। एक एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पर रूह का एहसास खत्म हो चुका है क्योंकि चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं और इसलिए हमको बॉर्डम लगता है, इसलिए हमको क्या लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं कि बस चल रहा है तो चलने दीजिए। और एक एनवायरनमेंट ये होता है कि जहाँ आप खुद को पुश कर रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एहसान की तरफ बढ़ रहे हैं। एहसान यानी कि खुद को जो है क्या करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गोल है हमारा वो खुद को बेहतर बनाना ही होना चाहिए। तो उसके लिए किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया गया? रोज़े का एग्ज़ाम्पल। उसके लिए किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया गया? तहज्जुद का एग्ज़ाम्पल। अब इस हदीस से क्या पता चल रहा है? तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हो? मतलब अगर किसी चीज़ की आपको ख़्वाहिश है और वो आप ले लो, ठीक? आपको किसी चीज़ की मतलब क्या आप हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जिस चीज़ की जो ख़्वाहिश है वो आप पा लेते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतों का कैसे पता चलेगा? कैसे जो है हमारी रूह को एहसास ही नहीं होगा बहनों और उसको आदत हो जाएगी कि ये तो मिलना ही मिलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने बच्चे को कोई जो है चीज़ें जो है दिलाते जा रहे हैं और दिलाते-दिलाते क्या हुआ कि वो बड़ा हुआ, एडल्ट हो गया। अब वो चाहता है कि दुनिया भी उसको वो चीज़ दे। ये सूरह ताहा की आयत नंबर वो थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तुमने दुनिया की ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ज़ाया की और उनमें आराम तलब किया। यानी कि आपने क्या किया, आराम की चीज़ें भी थी तो क्या इंसान क्या करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को अपना हक समझने लगता है। और जब इंसान अपना हक समझने लगता है किसी भी चीज़ को तो रूहानी एहसास तो गया। उस नेमत का जो एहसास होना चाहिए, वो जो रोज़े के बाद वाला पानी का जो एहसास होता है कि पानी भी नेमत है और खाना भी नेमत है और सोना भी नेमत है, उसका एहसास गया ना? वो अब एहसास नहीं होगा। तो क्या करना है, जो नम पड़ चुकी हैं चीज़ें, जिनको कुछ एहसास नहीं होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया और जो चीज़ें हाँ, मैं पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन एहसास नहीं है। कैसे होगा एहसास? जो चीज़ें आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं, उस चीज़ को तो आपने अपना हक समझ कर रख लिया है। क्या किया कि अपना हक समझ लिया कि नहीं ये तो मुझे मिलनी ही थी, नहीं, उन नेमतों को एहसास करना है, उन नेमतों का खुद को एहसास दिलाना है रोज़ा रखकर। क्या करके रातों को उठकर, जाग कर ताकि अगले दिन अगर चक्कर आए तो याद आए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दी है, नींद जो है नेमत दी है बहनों, तभी जाके क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों की लज़्ज़त आएगी और तभी जाके इबादतों की लज़्ज़त आएगी, ईमान की लज़्ज़त आएगी कि या अल्लाह आपने इतना ज़्यादा अता किया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तब जाकर जो है क्या होगा, बंदा शुक्रगुज़ारी करेगा। और कहा कि सिर्फ़ इसलिए नहीं खाओ या फिर इसलिए नहीं करो क्योंकि आप कर सकते हो। वो आपकी कैपेबिलिटी की यहाँ पर बात नहीं हो सकती कि हम कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उन लोगों में एंगेज होना है जो कि आपसे कम हैं नेमतों में। सिर्फ़ ज़कात के लिए नहीं, ठीक है? आजकल क्या होता है, ऑनलाइन जो है चीज़ें हम क्या करते हैं, दे देते हैं। ऑनलाइन है, एक स्वाइप किया, क्या हो गया, फ़ोन से, पिन नंबर से, स्वाइप से, गूगल पे से, ऑनलाइन से। हम अगर चैरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चैरिटी की बात नहीं हो रही है।
जो आराम की चीज़ें थी वो ज़ाया की, यानी कि अपने ऊपर ही जो है लगा के ज़ाया, 2 तरीके से ज़ाया हुई। या तो उसको फेंका गया या फिर उसको अपना हक समझ लिया गया। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आराम की चीज़ें अपना हक समझ के और मैंने खा लिया, ना तो उसका शुक्रिया अदा किया और ना ही जो है कि उस चीज़ का एहसास हुआ कि दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है। तो वो ज़ाया ही हो गई ना एक तरीके से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आराम के लिए दी और उसका 2 मकसद थे कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या करना था, शुक्रिया अदा करना था और क्या करना था कि वो किसी में बाँटनी थी, दोनों में से कुछ नहीं किया। तो जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन लोगों के साथ एंगेज होना है जिनके पास कम है, तो ज़कात की बात नहीं होती है। आजकल ज़कात जो है ऑनलाइन चला जाता है, ठीक? तो क्या जिस इंसान के पास जो है, हाँ, हालाँकि ये ज़कात भी ज़कात है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि आप जो है डोनेट नहीं करते। बेशक आपने डोनेट किया उसका मिलेगा, आपने किसी मस्जिद को किया, आपने किसी यतीम खाने को किया, किसी ऑर्फनेज को किया, तो क्या होगा कि जो जजमेंट डे होगा, कयामत का दिन होगा, उस दिन क्या होगा, हश्र के दिन वो बच्चा आपका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। आपने उसको कभी जाना भी नहीं होगा, बेशक उसका अजर है, लेकिन यहाँ एहसास की बात हो रही है। तो क्या आपने उनकी हालत को देखा? क्या आप एहसास कर सकते हैं फ़ोन के सिर्फ़ एक स्वाइप करने से और किसी के अकाउंट में ₹1000 डालने से? क्या उनकी हालत का एहसास हुआ? क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक है वो रूहानी एहसास है। बेशक आप कीजिए, आप डोनेट कीजिए, आपको जो चीज़ लगती है, आप क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ से आप डोनेट कर सकते हैं, आप जीपे, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रूह के एहसास की बात हो रही है, तो क्या आपने जो है एहसास किया? क्या आपको उसका पता चला कि उसको कितनी ज़्यादा भूख थी और किस तरीके से वो था? नहीं ना। तो क्या वो एहसास हो पाएगा आपको जो किसी को भूखा देखकर खाते हुए आता है? जिनको ज़रूरत है उनका एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कहा गया कि उनको देखें जो आपसे कम है। तो एक तरीका खुद को एहसास दिलाने का क्या है नेमतों का कि जिनके पास नहीं है, उनको भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्पिरिचुअल नमनेस क्या होती है? स्पिरिचुअल नमनेस जो है वो चीज़ होती है कि हर चीज़ जो है मैकेनिकल हो रही है। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ कि हम मशीन की तरह सारी चीज़ें करते जा रहे हैं और एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। मशीन में नहीं होती है ना फीलिंग्स। मशीन के पास कोई एहसास नहीं होता, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो हम कहीं न कहीं बहनों क्या हो गए, मैकेनिकल हो गए अपनी चीज़ों में। किस तरीके से? सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, फिर काम पे जाओ, फिर आगे चलो लंच में, फिर ज़ोहर पढ़ी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद फिर कॉलेज से आ गए, फिर असर पढ़ ली, फिर थोड़ी देर के बाद मगरिब पढ़ ली और ये सब कुछ। ठीक? तो क्या हो गया कि हमारा जो दिल है ना, वो क्या हो गया, वो फ़ील नहीं करता और वो हार्ड हो गया है। ठीक? क्या हो गया? कि वो हमारा दिल जो है हार्ड हो गया और वो सॉफ्ट नहीं रहा। जब सॉफ्टनेस नहीं रही तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब ये उन लोगों की बात हो रही है, पहले एहसास की बात हुई कि एहसास किन चीज़ों का होना चाहिए। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब जाने के साथ-साथ अपनी फैमिली का भी एहसास होना रूह का एहसास है। आपकी रूह ही आपको बताएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का एहसास किस तरीके से करें, अपने से छोटे लोगों को देखकर करें। उसी तरीके से आप किस तरीके से ज़्यादा एहसास कर सकते हैं, जितनी नेमतें हैं उसमें खुद को पुश करें, यानी कि एक नेमत है उसको जो है एक दिन के लिए छोड़ कर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मेरा जो है दिल वो क्या हो गया है, हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है। अब सख्त हो गया है, मान लीजिए कोई इंसान, अब ये उन लोगों को इस चीज़ से रिलेट कीजिए, जिन लोगों को आप कितना ही दीन के बारे में बताएँ, वो नहीं आते हैं बहनों। आप कितना ही बोल देंगे, वो कहते हैं वो कोई ना कोई या तो बहाना बना देंगे या फिर उनसे कह देंगे कि इस तरीके से कर लीजिए, ये सही तरीका है या वो तरीका है, वो नहीं मानते। उनके दिल में ना तो तकवा है, जो पहली स्लाइड थी, तकवा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर है और ना ही वो बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। 2 स्लाइड स्टार्टिंग में जो थी, उन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, उसको बोलते हैं हार्ड। तो एक इंसान आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा दिल सख्त हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप जो है अपना जो है क्या करना चाहते हैं, दिल को नर्म करना चाहते हैं, फीड द पुअर, यानी कि गरीब को खाना खिलाएँ।
ठीक है, पेट द हेड ऑफ द ऑर्फन, क्या करना है, यानी कि किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे। सुभान अल्लाह। पेट, ये वो वाला पेट होता है जो जैसे कि जानवरों को करते हैं ना, ऊपर से प्यार करते हैं, सहलाते हैं, सहलाने वाला पेट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या होगा कि आपको एहसास होगा, आपके पास अम्मा है, आपके पास अब्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन नेमतों का एहसास ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, अपना हक समझ लिया उस चीज को। जरा सोच के देखिए, जिसकी माँ नहीं होती, जिसका बाप नहीं होता, वो दुनिया में किस तरीके से रहता है बहनों। आज मुझे कोई कुछ बोलता है तो मेरे पास मेरी अम्मा है कि मैं बात कर सकूं कि आज ऐसा हो गया, आज कॉलेज में डांट पड़ गई, या फिर आज इस तरीके से लड़ाई हो गई, या फिर आज मैं गिर गई। वो सोचिए, जो माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि हमारा दिल सख्त हो गया है। तो हम क्या, हमारी रूह जो है क्या हो गई है, कहीं ना कहीं बीमार हो गई है बहनों, कहीं ना कहीं क्या हो गई है, वो मर गई है। हमें एहसास ही नहीं है उस चीज का। जिनके पास नहीं है उनको हम देखें, तब जाके जो है हमारा जो स्पिरिचुअल नम्बनेस है, जो ये रूहानी नम्बनेस, ये जो रूह का ठंडापन है ना, ये जो है क्या होगा, तब जाके जिंदा होगा। तभी जिंदगी को नया मीनिंग मिलेगा, वरना तो बोर्डम ही आएगा उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बोर ही होंगे। दीन के नाम पर क्या होगा कि बस नमाजें ही नमाजें चल रही हैं, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ मिल तो नहीं रहा। अरे मिला, मिलाया है आपको, आपने उस चीज की अहमियत खो दी, आपको उस चीज का एहसास नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी वेन्स है, आप गिन नहीं सकते। हल्का सा चाकू से जो है, क्या करे, हाथ भी कट जाए ना मैंने, तो कितना ज्यादा तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है ना। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको जोड़ देते, नेमतें ही तो है। हड्डी खुद ही जुड़ती है, डॉक्टर क्या करता है, उस चीज को सिर्फ उस पर उसको प्लास्टर लगाकर सही जगह पर कर देता है, वो भी तो एक नेमत है। सोचो, बोन का खुद जुड़ना, हड्डी का खुद जुड़ना, वो एक नेमत है। लेकिन हमने क्या किया है, हमारी रूह का नजरिया चेंज हो गया, हमारे देखने का नजरिया चेंज हो गया है किसी भी चीज को, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। कॉन्स्टेंटली क्या होता है, अगर हम जो है उन लोगों को देखते हैं जिनके पास क्या है, हमसे कम है, इस दुनिया की बात करें, तो हमें क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है नेमतों के बारे में पता होगा, हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें किन किन चीजों से नवाजा है। ठीक। इसी तरीके से अब जो है हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल पोवर्टी की बात करेंगे, यानी कि जो मतलब वैसे गरीबी होती है, और जो है जब स्पिरिचुअल पोवर्टी होती है। फाइनेंशियल पोवर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए, दुनिया की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास किसी चीज की कमी है, फॉर एग्जांपल पैसे की कमी, फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेट करते हैं ज्यादातर सब लोग, तो पैसे की कमी है। तो वहां कहा गया कि हम क्या करें, हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखें। क्या करें, अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, तो हमें क्या होगा, हमें एहसास होगा, क्या एहसास होगा कि हमारे पास कितनी ज्यादा नेमतें हैं, हमारी रूह को क्या होगा, वो पहचानेगी कि हम कितनी ज्यादा। जिस इंसान ने इस्लाम को दोबारा से खोजा है, यानी कि जो इंसान टूट के दोबारा से इस्लाम को पकड़ा है, कई कई लोग हैं, एग्जाम्पल्स लेने की शायद जरूरत नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले जो है बैंड में काम कर रहे होते हैं, गाना बजाना कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इस तरीके से हिदायत दी होती है कि वो अब जो है इतना फर्म हो गए, इतने इस्तकामत के साथ जो है दीन पर खड़े हैं। कई लोग होते हैं जो कि एक्टिंग में थे, वो जो है वापस से क्या हो गए, जो है उस पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसने क्या किया है, रिडिस्कवर किया है ना, तो उसे इस्लाम के बारे में कुछ स्पेशल चीजें पता चली, और जब वो उसे स्पेशल चीजें पता चली, यानी कि उसने उस स्पेशल चीज की वैल्यू की, और वो स्पेशल चीज बहनों, हमने क्या किया, अपनी जिंदगी में उन चीजों को आम समझ लिया कि ये तो मुझे मिलनी ही है, ये तो मेरा हक है। वो इंसान उस चीज को इतना ज्यादा स्पेशल समझता है कि वो उस चीज को वापस से छोड़ना नहीं चाहता। और इसी तरीके से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन से डरता हूँ कि जब इस्लाम में जो लोग होंगे वो जाहिलियत के दौर को नहीं जान पाएंगे।
ये बहुत बड़ी बात है। देखो जिसने जाहिलियत देखी है ना बहनों, उससे जो है पढ़ाई का मोल पता है। उसे पता है कि एक जाहिल इंसान कैसा होता है और एक पढ़ा लिखा इंसान कैसा होता है। हम अपनी ज़िंदगी में, यानी कि अगर हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता कि इस्लाम पर खड़े रहना कैसा है, तो हम उस चीज़ की कभी वैल्यू नहीं कर सकते। कभी भी हम जो है नहीं कर पाएँगे उस चीज़ की वैल्यू। हम ऐसी फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं जहाँ 5 टाइम की नमाज़ चलती आ रही है। हम ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ रोज़े रखते चले आ रहे हैं। हम ऐसी फैमिलीज़ में पैदा हुए जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है। ठीक है? तो हमें क्या लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूटीन है, ये ज़िंदगी जीने का जो है तरीका है। बेशक वो ज़िंदगी जीने का तरीका है, पर क्या जो है एहसास के साथ जीना ज़्यादा बेहतर नहीं? तभी तो हमको लगता है कि ये तो करना ही करना है, तो वो एहसास खत्म हो गया। जिस इंसान ने झाड़ू लगाकर जो है एक जो है अच्छा खिलाड़ी बना, तो इस इंसान को पता है कि झाड़ू लगाना क्या था और वहां पहुंचना क्या है। अब जब सारे इंसान ही खिलाड़ी पैदा हो जाएंगे तो उनको क्या पता झाड़ू लगाना क्या था। इसलिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उस दिन से डरता हूँ जब इस्लाम में जो लोग होंगे वो जाहिलियत के दौर को जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या कहा गया कि जब फाइनेंशियल पुअर्टी हो तो गरीबों को देखो, तब जाकर क्या होगा पता चलेगा। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से स्पिरिचुअल पॉवर्टी, स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी गरीबी। रूहानी गरीबी क्या हो गई कि यानी कि मैं कोई काम जो है कम कर रही हूँ, बेटर होने की चीज है। ठीक। और यहाँ जो रूहानी गरीबी को कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या करें, ईमान की लज्जत पाने के लिए क्या करें, जाहिलियत करना शुरू कर दें, फिर उसके बाद जो है वापस से वो चीज करना शुरू कर दें। बिल्कुल से नहीं। बिल्कुल से नहीं। ये सब चीजें नहीं करनी है। स्पिरिचुअल पॉवर्टी के लिए उन लोगों को देखें, बिल्कुल उल्टा है बहनों। देखो दुनिया की गरीबी के लिए हमें किनको देखना है, जिनके पास नहीं है, जिनके पास कम है। और स्पिरिचुअल और रूहानी गरीबी के लिए हमको किसको देखना है, जिनके पास ज्यादा है। सुभान अल्लाह। यानी कि जो हमसे ज्यादा करते हैं, यानी कि उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम करें। क्या हम सहाबा कराम के उस तक पहुंच सकते हैं? कभी कभी नहीं पहुंच सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां सूज जाती थी बहनों, हम कभी नहीं पहुंच सकते उस चीज में। तो यहाँ की गरीबी किस तरीके से अपने से नीचे को देखकर एहसास करना है। और जो है स्पिरिचुअल जो रूह की गरीबी है, गरीबी का मतलब क्या हुआ कि रूह का जो है परफेक्शन लाना है, उसके अंदर प्योरीफाई करना है। तो उसको कैसे करें, जो हमसे क्या है बहनों, हमसे ज्यादा नेक है, उनको देखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक चीज और थी। एहसान की बात हुई थी, तो एहसान क्या है उसके बारे में पता करते हैं। तो ये पूरी हदीस इंशाल्लाह पढ़ देती हूँ। मुझसे इसहाक ने बयान किया, उसके उनसे जरीद ने, उनसे अबू हयान ने, उनसे अबू जर अनहा ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अनहा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के साथ तशरीफ रखते थे कि एक नया आदमी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों, रसूलों और उसकी मुलाकात पर ईमान लाओ और कयामत के दिन पर ईमान लाओ। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तन्हा अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो और फर्ज ज़कात अदा करो। नमाज कायम करो और फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? जिसकी बात हो रही थी ना, एहसान यानी कि परफेक्शन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, वरना ये अकीदा लाजमन रखो कि अगर तुम उसे नहीं देखते तो वो तुम्हें जरूर देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने सोचा उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, कयामत कब कायम होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछा जा रहा है
خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا۔ البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہی مینا برساتا ہے، پانی کے لیے یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بارش کے لیے مینا ہوتا ہے، وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، رحم یوٹرس کے لیے یہاں پر یوز ہوا۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جبرائیل تھے۔ سبحان اللہ، انسانی صورت میں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں بیسیکلی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن احسان کی یہاں پر بات ہوئی کہ احسان کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب کبھی بھی اگر ہم روحانی طور پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں بہنوں، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم بور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایک ڈرائیونگ فورس چاہیے ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ایک ایسی چیز کہ کوئی ہمیں بس پش کر دے، کوئی ہمیں اس کی ایک نئی چیز بتا دے۔ فار ایگزامپل ہم ایک پیپر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پیپر کو آپ بار 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 پڑھتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں کوئی اگر ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ فورس ڈال دے جو کہ آپ کو کسی چیز کے کرنے کے لیے ایکسائٹ کر دے، ہے نا، یہ تو آپ کیا ہوں گے، اپنا 100% دیں گے۔ تو کیا ہے یہاں پر پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ کا احساس ختم ہو رہا ہو کسی چیز کو کرنے کا، تو پہلے تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ چیز بھول جائیں تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ ڈرائیونگ فورس آپ کی روح کو احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میں دنیا میں جتنے غلط کام کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوگا، میں اگر دین کے معاملے میں جو ہے تھوڑی سی ٹھنڈی پڑ گئی ہوں، تھوڑی سی نم پڑ گئی ہوں گی تو مجھے احساس ہوگا۔ تو احسان جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے روح کو جو ہے احساس دلانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے روح کو ایسا بنائے کہ ہم اسپریچول ہائنس تک پہنچ جائیں، یعنی کہ جو ہے ہماری روح جو ہے ایسی بلندی پر پہنچ جائے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا رحم کا جو ہے وہ کوالیفائی کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تک جو ہے ہم لوگ پہنچ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیں۔ اس لیے نہیں کیونکہ سائنس بولتی ہے آج ایسا کہ سنتیں اس طریقے سے جو ہے کلیریفائی ہو چکی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ صرف سنتیں ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، اور ہمیں جو ہے عبادت ایسی کرنے والی بنائے کہ ہم اپنی زندگی، ہم اپنی دین اور دنیا جو ہے دونوں ساتھ میں لے کر چلے، امبیلنس نہ ہو، صرف اور صرف بیلنس ہو، اور ہماری روح میں جو ہے وہ احساس ڈال دیں جو ہے ضروری ہے ہماری روح کے لیے۔ الحمدللہ، تو آج ہم نے کیا پڑھا کہ جو روح کا احساس ہے وہ کیا ہے، خود کو بہتر کرنے کا ہونا چاہیے، خود کی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، دوسرے کی مجبوری کا احساس ہونا چاہیے، دوسرے کے حالاتوں کا احساس ہونا چاہیے، اور دوسرے کی غلطی کا جو ہے احساس، اور دوسرے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے یا اس کے لیے کیا احساس، ہمیں اسے شیم نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کے لیے، ہمیں اسے گلٹی فیل نہیں کرانا ہے۔ کیونکہ عبداللہ ابن عامر العاص کو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بیوی نے بھی گلٹی فیل نہیں کرایا، کیونکہ جبکہ وہ نہیں دے پا رہے تھے اپنا جو ہے اپنی دنیاوی زندگی میں، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ وہ ایک اچھے عبادت گار ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ بہت خراب شوہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشچن صرف یہی تھا۔ تو ہمیں دوسرے کے لیے کیا احساس کرنا ہے کہ ہمیں اس کے اس احساس کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اسے بالکل بھی گلٹی فیل نہیں
नहीं कराना है, सामने वाले को स्पेशल फ़ील कराना है, इम्पोर्टेंस देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे एहसास की बातें थी, दूसरे के लिए हमें क्या एहसास रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बातें थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की रूह का एहसास जो है वो कायम रखे, उसको ज़िंदा रखे, सही और गलत समझने का एहसास हमारे अंदर डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।